guide us. For that, we should go through today's presentation. We are really excited to have our guest speakers, wonderful and beautiful ladies, Miss Shalini Menon and Mrs. Manjusa Bhaskar. Shalini Menon, international educational consultant, life coach, founder of Even Career Clarity, holds a degree in information technology from University of Technology, Sydney, Australia, works with students who help them see a clearer path in education and their career, bringing the best out in students, and Mrs. Manjusa Bhaskar, a career counselor and a corporate trainer, masters in fine arts, specialized in dramatics and holds an LLB degree, dealt with thousands of students and professionals for career. Madam? Hello, madam. Yes. Yes. You want to know anything? Then please wait. May I now request speakers for giving your valuable insights on methods of getting career clarity. Please, ma'am. Hello, Shalini ma'am. Thank you. Hello. Hello. Please mute yourself. Please listen to Shalini ma'am and. Yes. Hello, madam. Your voice is not audible, madam. Okay. Now you can hear me. Please increase the sound. Sometimes it was coming very high. Sometimes it is very slow. Okay. Okay. Then I will check. Please, Shalini ma'am. Hello. Ma'am, should I start? I'm not able to hear you. Yes, ma'am. You can start. Thank you. Thank you for the Shalini, introduction. your voice is welcome, not clear. everyone. We would like, yes. Hello. Just one. हेलो हेलो Yes. मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी? शालिनी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा रुक के आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Can you put that on? हेलो। हाँ, yes, Hello? मैंने बताया उनको। She's working on that. Is it better now? You hear me now? Am I? नहीं, आवाज नहीं आ Can रही you hear me? No. ठीक है, 1 मिनट। Ma'am, we do have some network issues. Maybe that's what's causing it. Are you able to hear me at all now? Yeah, now it's better. It's better. So I'll make a start. I hope everyone can hear me. I'm apologizing for the network issues that we are having. But if you do have questions later, you can always get in touch with me. I'll answer them, whatever you have on your mind. So let me make a start. So I'd like to welcome all of you for a webinar on getting career ready. What does it mean? What does it mean when we say get career ready? There's many of us who are who are never clear on what we are actually doing, even after we have grown up. Not only as a child, as we grow, our choices change. We do get exposed to a lot more things around us, a lot of opinions, a lot of viewpoints from a lot of people, and yes, it does make us think that is it really this that I should be doing, or should I be changing what I really wanted to get into earlier, or should I try something new? So a lot of questions come up in our mind. So basically today what I'm sharing with you are the different methods that we use to become more clearer about our career.
So who are we? We are basically a team of professional career counselors. And our main agenda of doing this at many schools, many institutes, many coaching classes is basically where there's a lot of students or even professionals, even at a corporate level, just to make people aware that they need to make an informed decision about their career, what they really want to do. I'm happy. Now, what is career clarity? Career clarity methods, different ideas about different career paths, what you can do in different industries. So basically, you are learning more about each and every area before you can make a decision about what you want to do. And of course, it starts with having some tools with us which help us get career clarity, which I will share with you today. And of course, the continuous career guidance, which is used by, which is given or provided by our counselors. Many of our counselors, and today one of our senior counselors. So what is one of those tools? Now this is one of the students because it does not make them think about, what if they're good in maths, if they're not, it's not based on their knowledge. It tests their interest. It actually makes them think what they should be enjoying based on on their interest, in a very nice report telling the students what they can do, or even a professional, at least making them clear about what their interests are. It's called an eval test. The tool is called eval test, and it's basically an interest test that helps you identify what you like to do. And it will give you a lot of, there are 4 main features which I'll talk about, but about the test, it is a very simple test to take. It takes only 15 to 20 minutes, and it gives you a comprehensive report at the end, which is basically it's based on the Holland's theory, which is used to design the test and give you a proper report. So the 4 main features of this report include the career interest profile and the recommendations that it makes, basically which qualification you can take up, what the jobs are in that particular area, and what kind of qualities you should have as a person. Of course, it talks about the work style indicators, which is a very important part of the report, because your work style indicator clearly tells you what kind of a person you are, or if a particular job or a particular qualification requires you to have better communication, or maybe to be more collaborative, what you should do to improve that. Then, of course, at the end, you have a summary in the report, which shows you what you should, what are your interests and where that's going to lead you to. So the eval test report, it's based on many categories. It tests you on different categories. Like I said, doesn't test your mathematical knowledge or your general knowledge. It is testing your interests. So it recommends the best jobs based on your interest and also the education. It will give you a graphical approach to it, which makes it very clear what are your interests, what is it that you are scoring high in, and what is it that you're scoring low in. There are work style indicators, like I spoke. It's based on how good you are with clients, how collaborative you might be. If you are an outdoor person, or if your communication is high, or if you need to work on it, it will tell you all that. So I'm going to go through eval with you. It won't take too long. I'm going to run a very quick video, which will show you what happens in eval and how a person signs up. So let me just play this video for you.
it asks for, where you will enter your name, date of birth, etc. And you'll have a password which will belong just to you. And you will get an email sent to your email ID, whatever you've entered, so that you can verify that. And this is what it will look like on the website. It allows you to choose the 10, which one you are choosing. So we have different tests for humanities students or anyone who's already in a field like that and they want to explore more what they can do after that, or engineering, commerce, science, and even a general eval to 10 standard to find out exactly what stream they should be in. Now, of course, this is where it ends. You purchase the test and you then go on and complete the test. At the end, you will be given a report, which we will discuss more after Manjusha ma'am takes over, because she will bring in the report and she'll tell you more about it, how it is used as part of career guidance for a student. So this is the first part for career clarity. We are using a tool which is called Eval Test, which is what I've just introduced to you. And of course, the second part is where Eval Test is used by career counselors to guide students further, where they help them narrow it down further to bring them to an understanding of what they really are interested in. So let me introduce Manjusha ma'am to you. And she has been working with a lot of students, a lot of corporates for their professionals to get more clarity on what they should be doing to be happy. So basically, we are all working on a similar path. We are trying to create a community of happy people where they know what they are really interested in, what they should be doing, and how they should be doing it. So over to you, Manjusha ma'am. I'll let you speak on eval and career counseling. Thank you. Thank you so much. Are you ready to listen? Just chat box में yes डाल दीजिए. बंदे हैं हम उसके, उस पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे है फौलादी, हिम्मत है अपनी, अपने हाथों किस्मत लिखकर आज चलेंगे हम. यस, अगर हमारे अंदर जुनून है, पैशन है, तो ये अपने हाथ की जो किस्मत है हम खुद लिख सकते हैं. डू यू एग्री विथ मी? आपने अपनी अपनी किस्मत लिखी है और वैसे ही आप अपने बच्चों पे भी काम कर रहे हैं, बच्चों की भी किस्मत बना रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिषी से बात करते हैं, किसी से बात करके मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, जैसे उसका बर्थ होता है वैसे ही हम दौड़ते हैं कि इसकी पत्रिका कैसी है, जन्म पत्रिका कैसी है, बड़ा होके क्या करेगा. करेक्ट? यस. फ्यूचर ऑफ एवरीवन, माय फ्यूचर, मेरे चाइल्ड का फ्यूचर, मेरी फैमिली का फ्यूचर, मेरी सोसाइटी का फ्यूचर, मेरे नेशन का फ्यूचर. एवरीबडी इज वर्किंग ऑन फ्यूचर, बट हाउ? एक्शन इन प्रेजेंट, एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट, जो भी हमारा पास्ट है उसके ऊपर के एक्सपीरियंस लेके हम जब डिजाइन कर रहे हैं एक्शंस फॉर फ्यूचर. लेकिन जहां पे पास्ट फ्यूचर में आ जाता है, अब कैसे आता है? मुझे स्टेज से डर लगता है. ओके, ये मेरा पास्ट है. मुझे स्टेज से, क्योंकि कहीं तो मैं स्टेज पे चढ़ा था और मुझे वहां पे फेल्योर मिला था, तो मुझे स्टेज पे चढ़ने से ही डर लगता है. ये पास्ट हम कैरी करते हैं फ्यूचर में भी, और वो फ्यूचर में कैरी किया हुआ पास्ट इतना ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि हम अपने करियर में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलता है. तो एवरी डे इफ वी आर इन कंफ्यूजन, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इनविजिबल. नेक्स्ट स्लाइड शालिनी. तो ये क्या है?
मेरा करियर क्या है, मैं अपना करियर कैसे बना सकती हूँ, मैंने अपना खुद का करियर कैसे बनाया। सो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैवल है। एंड यू आर ऑल फ्रॉम कलकत्ता, राइट? कोलकाता, यस। तो कोलकाता से मेरी जो यादें जुड़ी हुई है, व्हेन आई वाज इन, मेरे हस्बैंड कहलगांव में थे, भागलपुर, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल। नागपुर से कलकत्ता आती थी सुबह सुबह, एंड रात को मेरी कलकत्ता स्टेशन से दूसरी ट्रेन रहती थी। सो होल डे मैं वहां पे कलकत्ता स्टेशन पे बैठती थी। तो उस टाइम को मैंने कैसे यूटिलाइज किया, वहां पे एक स्टॉल था, दैट इज गीता गीता इस इतनी सुंदर बुक्स थी वहां पे, तो आई यूज टू बाय दैट एंड आई यूज टू रीड। तो उस समय को मैंने कैसे रीड करके यूज किया, क्योंकि अब उसमें मैटर कौन सा, मैंने क्या पढ़ना चाहिए, मैं क्या कर रही थी, मैं किस प्रोफेशन में जा रही थी। एवरी एज हैज सम करियर, दैट इज वी कैन से कि मुझे कहीं पे ये अपना प्रोग्रेस करना है, मुझे अपनी इस प्रोफेशन में यहाँ तक जाना है, फिर वहां से वहां तक जाना है। सो हाउ, अब यहाँ पे इनविजिबल थिंग्स अगर मेरी विजिबल है तो आई कैन सिलेक्ट बुक्स इजीली, लेकिन अगर वहीं पे इनविजिबिलिटी है, क्लैरिटी नहीं है, देन हाउ आई कैन सिलेक्ट कि मैंने क्या रीड करना चाहिए। एग्जैक्टली, सो लाइक दैट। अभी आप चैट बॉक्स में वो लिखिए कि आप आगे कौन से रीडिंग, हाँ गीता प्रेस अगर ऐसा शॉप मिला आपको, तो आप कौन से बुक्स वहां से उठाएंगे, आपके इंटरेस्ट एरिया क्या है, आर यू क्लियर विद दैट? इफ क्लियर देन राइट यस, इफ नॉट क्लियर देन राइट कंफ्यूज्ड। तो देयर इज इनविजिबिलिटी। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, जैसे चश्मा है, चश्मे पे अगर हमें काफी दिन यूज करते करते वी जस्ट नीड टू क्लीन इट, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन होता है, एक सॉफ्ट कपड़ा होता है, प्रॉपर टेक्निक्स होते हैं जिससे हम क्लियर करते हैं चश्मे को, एंड देन अगर इट इज क्लियर विथ विजिबिलिटी, वी आर एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली। So every age need some tools, some set of process to get from invisibility to visibility. Next, so how we can do like this, ये सब कैसे हो सकता है, तो ये समझना भी कैसे है। चश्मा तो चलिए धूल है तो समझ जाएंगे, लेकिन कैसे समझना है, तो कंफ्यूजन। अगर मेरे मन में कंफ्यूजन है तो हम मुझे क्लैरिटी की तरफ जाने के लिए आई नीड टू कंसल्ट समवन, और मुझे अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आई नीड टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर अदर्स, तो हो सकता है कि मेरा भी क्लैरिटी आ जाए। अब यहाँ पे लिखा है पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन एंड इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे बच्चों की बात आती है, अगर बच्चे कंफ्यूज्ड है, किसके किसके बच्चे आज भी करियर में कंफ्यूज्ड है, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। करियर में कंफ्यूज किस लिए है, सब्जेक्ट के लिए है कि उसको क्या आगे बनना है वो क्लियर नहीं है, या मल्टीपल ऑप्शंस है, जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स सो दैट यू विल गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल आता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो बेस्ट दिया, लेकिन पता नहीं बच्चा करियर में मैं खुद ही नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं तो समझाता हूँ लेकिन वो सुनता नहीं है, ही इज नॉट लिसनिंग। अब ये इसका लिसनिंग बढ़ाने के लिए व्हाट आई कैन डू, व्हाट वी कैन डू, तो यहाँ पे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, क्या काम करेगा, क्या बनेगा। अब वो बोलता है कि मुझे गिटारिस्ट बनना है, बोलता है कि नहीं मुझे क्रिकेट प्लेयर बनना है, किसकी तरह, तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक ही उड़ता है, वहां पे आपकी वरीज शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाता है कि ये बच्चा बड़ा होके मेरा क्या बनेगा, मुझे तो इसको डॉक्टर बनाना है, लेकिन ये सुनता नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स है, अब ये डॉक्टर्स चाहते हैं कि अपनी मेरी जो केबिन है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, वहां पे मेरा बेटा मेरी बेटी उसमें ज्वाइन करे मुझे, लेकिन जहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो वहां वरीज हो जाती है, एंजाइटी होती है, सही में ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा।
अगर उसका इंक्लिनेशन वहां पे नहीं दिख रहा है तो देन कैन यू रीस्टार्ट दैट शालिनी, कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, सो कैन यू रीस्टार्ट शेयरिंग सो दैट आई थिंक I'm just restarting, ma'am. 2 तो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ ये चीजें है, ये चिंता है, तो आपके वरीज के पॉइंट्स क्या है? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? आज यहाँ पे बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आपका ये जो टाइम है यूटिलाइज हो जाए 100%। आपके वरी पॉइंट क्या है, वरीज क्या है आपके अंदर अभी? बच्चों के लिए है कि खुद के लिए है? हो सकता है आपके खुद के लिए हो या फिर आपके बच्चों के लिए हो, या यहाँ पे लेडीज होंगी तो लेडीज भी सोच रही होंगी अब मैं क्या करूँ। एक्चुअली बिकॉज ऑफ आई थिंक दैट इंटरनेट इशू ये ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं क्योंकि शेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है स्पीड के साथ। तो डोंट वरी, मैं उतना अच्छे से बोल लूंगी। सो ये सब चीजें कंफ्यूजन, आज कंफ्यूजन है, कल क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज यू आर मूविंग अराउंड। आप सोसाइटी में जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, कुछ चीजें सुनते हो या किसी से इंटरेक्ट करते हो, कोई मेंटोर्स है आपके यहाँ, या मेरे जैसे अभी ये सेशंस आप लोग काफी अटेंड कर रहे होंगे, तो थोड़ी थोड़ी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और क्लैरिटी मिलती जाती है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन कभी कभी कुछ कंफ्यूजन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय, वो समय जहां पे आपको चॉइस करना है, आपको निर्णय लेना है, आपको एक डिसीजन पे जाना है। वो डिसीजन विल चेंज कंप्लीट करियर। वो डिसीजन टेकिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहां पे अगर कंफ्यूजन बढ़ते जाता है दैट मीन्स इट क्रिएट्स स्ट्रेस। अब यहाँ पे स्ट्रेस हटाने के लिए, स्ट्रेस को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रेसर्स। बेसिकली वो स्ट्रेस किस वजह से है, तो ये स्ट्रेस किस वजह से है, दैट इज स्ट्रेसर्स वी नीड टू फाइंड आउट। नाउ आपके अंदर अभी भी एक कुछ स्ट्रेस होगा, अभी मेरे अंदर स्ट्रेस है, कुछ हो गए कि मुझे कल मीटिंग में वहां पे क्या बोलना है, मैं मेरी तैयारी हो गई है कि नहीं, ये स्ट्रेसर्स है जो आपका अभी प्रेजेंट मोमेंट डिस्टर्ब कर सकता है। ओके अब ये डिस्टर्ब ना हो उसकी वजह से, उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सॉल्व इट एंड राइट डाउन इन क्लियर ऑन द पेपर कि दीज आर द माई स्ट्रेसर्स, और ये मैं क्लियर कर लूं अपने पेपर पे तो मुझे क्या मिलेगी, पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि यस दिस इज अ प्रोसेस एंड आई विल गो विद दिस प्रोसेस ओनली। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अ गोल, क्योंकि एक्शंस कैसे हम डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका है कि एक छोटा कैबिन है और डॉक्टर फिर से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे 2-3 डॉक्टर ही पहले दिखे विंडो पे। सो फॉर एग्जाम्पल आपके डॉक्टर का एक कैबिन है एंड ही और शी इज लुकिंग फॉर बिग हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां पे वो अब वो ओनरशिप में रहेगा कि रेंटेड रहेगा कि उसमें पार्टनरशिप रहेगी, बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे आपको क्या बनाना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है जिसके एक्शंस छोटे छोटे एक्शंस में उसको स्प्लिट अप करना पड़ता है, राइट। अब यहाँ पे डिसीजन क्या लेना है, पहले तो सेट गोल एक डिजाइन कर लिया कि ये मेरा गोल है, और उसको फिर मल्टीपल एक्शंस में स्प्लिट अप कर दिया। ये आप लेंगे, जैसे बच्चे का है, फॉर एग्जांपल बच्चे का करियर है कि उसको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, लेकिन क्यों, और वो इंजीनियर बनने के लिए व्हाट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, 10th के बाद मुझे 11th 12th साइंस पीसीएम में लेना है, मैथमेटिक्स लेना है, फिर इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज में करना है, कितनी रैंकिंग कॉलेज में करना है, इंडिया में करना है कि बाहर करना है, ये बहुत छोटे छोटे एक्शंस है, वी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच द गोल। लेकिन ये गोल तक पहुंचने के लिए व्हाट आई नीड दैट इज माय पैशन। ये मैं क्यों, पैशन कहाँ पे है, भाई पे, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी सब अपने छोटे बचपन में जाएंगे, बच्चे होंगे तो वहीं पे और छोटे में, और जितने प्रोफेशनल्स हैं आप याद कीजिए वो मोमेंट जहां पे आपको टच हुआ था कि यस ये यूनिफॉर्म देके मुझे लगा था मैं ये करियर करूंगा,
यहाँ पे यूनिफॉर्म दिख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, जैसे ये एस्ट्रोनॉट की टोपी दिख रही है। कल्पना चावला, कल्पना चावला के समय पे कितनी लड़कियों ने सोचा था कि मैं कल्पना चावला जैसे एस्ट्रोनॉट बनूंगी। क्यों? क्योंकि उसको सब लाइक कर रहे थे, उसकी वाह वाह कर रहे थे। बच्चे को इतना नहीं समझता कि उसमें पेमेंट कितना मिलेगा, पगार कितना मिलेगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये सब नहीं समझता है। बच्चे जब हम रहते हैं तब हमें वो सिर्फ यूनिफॉर्म या लोग क्या कहते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। अनादर अनादर थिंग इज कि घर में एक किसी के घर में ऐसा हुआ कि बहुत डिस्प्यूट, घर में इतना ज्यादा डिस्प्यूट हुआ प्रॉपर्टी को लेके कि दैट टाइम ही डिसाइडेड कि मैं लॉयर बनूंगा और ऐसे कोई भी डिस्प्यूट आएंगे तो आई कैन सॉल्व इट, क्योंकि वहां पे वो हेल्पलेस था। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें होंगी आपके बचपन में जिसके कारण आप टच हो गए और उस कारण आपने ये करियर सिलेक्ट किया या करियर सिलेक्ट करना चाहते हैं आपके बच्चे। तो आप इस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट करके देखिए। अब इंटरेक्ट कैसे करना है, बच्चे इतना नहीं समझते। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फैशन डिजाइनर, यस वी कैन से फैशन डिजाइनर बनना है, तो आपने बच्चों को देखा होगा साड़ी पहन के फिर फैशन से ऐसे करके लिपस्टिक लगा के मिरर में फिर फैशन वॉक करना, मिरर अपना टीवी के सामने फैशन वॉक करना। वी ऑल से यस मेरी बेटी मॉडलिंग बहुत अच्छी करेगी, लेकिन 10th आते आते उसके बहुत सारे मूड स्विंग्स चेंजेस दिखने लगते हैं। बाय हियर वी विल सी अनदर स्लाइड विथ एडोलसेंस एज। नेक्स्ट स्लाइड। एडोलसेंस एज होता क्या है? Adolescence age is divided into 3 parts: early, middle, and pre, middle, and post. अब 6 नियर अबाउट 6 स्टैंडर्ड से बच्चों के मूड स्विंग्स आपने देखे होंगे, बहुत चिड़चिड़ाते हैं। आपको भी याद होगा कहीं कि आप बहुत चिड़चिड़ाते होंगे। डॉक्टर्स मुझे समझेंगे इस चीज को कि जब आप बच्चे थे तो उस समय चिड़चिड़ाते थे जहां पे आपके बॉडी के अंदर चेंजेस शुरू हो गए थे, कुछ हार्मोनल चेंजेस, कुछ बॉडी ग्रोथ। तो उसमें क्या होता है कि चिड़चिड़ होती है, तो मम्मी आपको प्रॉपर फूड हैबिट्स देते हैं, हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ती है। फूड इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आपके पेट में खाना गया तो ये शांत हो जाता है, आपने सुना होगा। इसके कुछ नहीं है, भूख लगी है इसको खिला देंगे तो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी मांग रही है और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे भूख लगी बोलूं, वो चिड़चिड़ाना शुरू कर देता है। इस चिड़चिड़ाहट में क्या होता है, वो फ्रेंड से चिड़चिड़ाता है, स्कूल में चिड़चिड़ाता है, हर जगह चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती है उसकी, वो बिकॉज ऑफ एडोलसेंस एज। अब ये अगर हमें पता हो तो प्री टीनेज, मिडिल टीनेज, प्री एडोलसेंस एज, प्री टीनेज, पोस्ट टीनेज एंड देन अप टू 24, एज ऑफ 24, ये सब चेंजेस बॉडी में होते हैं। और इसी दौरान उनका मेन एजुकेशन टर्म होता है अप टू 10 स्टैंडर्ड। ओवरऑल कि उसको 10 स्टैंडर्ड तक पता चलता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मुझे बायोलॉजी क्यों पसंद है। Can I continue? Yes, ma'am. ओके तो यहाँ पे अभी हमारा क्या हुआ,
पॉज हो गया एंड देन अगेन वी आर हियर। इंटरेस्टिंग है तो सब कंटिन्यू करेंगे, इंटरेस्टिंग नहीं है तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। लाइफ इज ओनली लाइक दैट। अगर इंटरेस्टिंग है तो हमें कोई भी वर्क करने में, काम करने में बहुत मजा आता है। वैसे ही हम बच्चों के करियर पे लाइक काम कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें क्यों समझनी है, एडोलसेंस एज क्यों समझना है? क्योंकि वहीं पे कुछ चीजें हैं जहां पे हम पैटर्न लेके बड़े हो गए हैं। चिड़चिड़, अब चिड़चिड़ हुई तो उसमें हमने रिएक्ट कैसे किया, फिर सामने से कैसे आया, एंड वो क्या ऐसी पर्सनालिटी है जो हमने डेवलप की, एंड दैट इज स्टॉपिंग अस इन वो बहुत बड़ा स्टॉप है, हर्डल है हमारे करियर के, प्रोफेशन के, लाइफ के, फैमिली एनवायरमेंट के प्रोग्रेस में, सक्सेस में। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए किस चीज की जरूरत है? तो मेनली ये जो करियर क्लैरिटी टेस्ट जो मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट इवाल के साथ शुरू की, दैट इज ऑन दैट बेसिस आई एम गिविंग करियर काउंसलिंग। तो यहाँ पे सिर्फ ये चीजें नहीं निकली कि सिर्फ अभी फिजिक्स लेना चाहिए कि मैथ्स लेना चाहिए कि बायोलॉजी लेना चाहिए। नो। नेक्स्ट स्लाइड अगर हो सकती है तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू। तो सब्जेक्ट कौन सा सब, जहां पे मैं थी अभी कि बायोलॉजी अगर पसंद नहीं है, तो एक बच्चे का ऐसा हुआ कि 8th, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. You are audible. ओके। तो बच्चे का ऐसे हुआ कि वो 7th तक बहुत अच्छा पढ़ रहा था, 8th थोड़ा सा बायो में उसको निगेटिव शुरू हो गया, बिकॉज दैट टाइम ही वाज इन अ प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज मतलब आपके सेंसेस जो होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती है बच्चों की, जैसे बॉय है तो बॉयज की तरह, बॉयज की फीलिंग्स, जैसे गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होना, गर्ल्स की बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होना। तो ये सारी चीजें, फीलिंग्स जो है वो actually I'm getting message that no voice, maybe मैम they have आपकी आवाज आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों का उस सब्जेक्ट की तरफ हो सकता है कि निगेटिव हो जाए। वो बच्चा 8th में जो पढ़ रहा था बायोलॉजी में, दैट इज ह्यूमन फिगर, और फिर 9th में इतना ज्यादा हेट्रेड में चला गया, एंड he decided, जब मैंने उसके साथ 1-to-1 काउंसलिंग अकेले में ली, that time he told me I will not marry, I hate girls। अब ये ऐसा क्यों हुआ? अब उसको सिंपल है कि बायोलॉजी पसंद नहीं है। हम क्या सोचते हैं, उसको बायोलॉजी पसंद नहीं है, वो मैथ्स लेके चला जाएगा आगे। बट कैन यू इमेजिन, ये अगर हेट्रेड लेके वो बड़ा होगा तो कैसे वो सोसाइटी में बिहेव करेगा, कैसे वो सोसाइटी को फेस करेगा, बहुत सारी चीजों में उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सो हाउ ही कैन देन हैंडल इट? उसी एज में अगर हम पकड़ के उनको समझाते हैं तो इट इज हेल्पफुल, अदरवाइज ही विल कैरी दैट पैटर्न। अब इसको पहले तो समझना, निकालना। तो जब मैं करियर काउंसलिंग के साथ बैठती हूँ तो पहले मैं फादर से बात करती हूँ, फिर मदर से बात करती हूँ कि आपका बच्चा कैसा है, एंड देन आई स्पीक विथ चाइल्ड। अब बताओ, तो जब एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इट्स रियली आई एंजॉय दैट एक्सप्रेशंस, क्योंकि फादर अपनी तरफ अपने परसेप्शन से बात करते रहते हैं और वो स्माइल देते रहता है बच्चा, और फिर मदर अपने परसेप्शन से बोलती है। उसका कंसर्न क्या रहता है कि ये खाता पीता नहीं ठीक से, ऐसे करता है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है, मेरे साथ बहुत अटैच है, लाइक दैट। फादर का टिपिकल वही कि मैं तो घर में रहता नहीं हूँ, तो मैं बाहर ही रहता हूँ, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, मैं आता हूँ तो फिर क्या बोलते हैं, बोले एक लाइन बताइए कि आप डेली उसके साथ क्या बात करते हैं? तो पढ़ो। उसके अलावा मैंने तो बात ही नहीं की। बोली नहीं, आपको डेटिंग करना जरूरी है उसके साथ जाइए, उसको बाकी चीजें सिखाइए। पढ़ना तो स्कूल में सिखा रहे हैं, बाकी चीजें कौन सिखाएगा? नाउ फाइंड आउट कि आपने उस समय क्या मिस किया था अपने लाइफ में। बहुत सारी चीजें हम मिस कर जाते हैं, लेकिन हम यही सोचते हैं कि यही सही चीज है। नहीं, तब हमारी फैमिली मोहल्ले में रहते थे, हम एक साथ खेलते थे, ग्राउंड में जाते थे, अकेले चले जाते थे, इट वाज इजी फॉर अस। लेकिन ये बच्चे वैसे नहीं है। हमने क्या सिखाया, बेटा चढ़ना मत, गिर जाओगे। वो बता दिया, उसको टैगिंग कर दी, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, टैगिंग कर दी, तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुम बहुत आलसी हो। बहुत सारी टैगिंग हम कर देते हैं, और ये टैगिंग कहाँ चली जाती है, उसके पर्सनैलिटी पैटर्न में।
और वो ये सोचने लगता है कि मैं गधा हूं। वो उतना नहीं समझ पाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाओगे, ये ज्ञान उसको नहीं समझ में आता। उसको उतना ही ज्ञान समझ में आता है कि भाई तू गधा है और तू ऐसे ही फेल हो जाएगा। ये एक्सेप्ट कर लेता है वो। इज इट ओके, इज इट ओके, नॉट ओके, क्योंकि आपके मन में अलग बात है लेकिन वो कन्वे नहीं हो रही है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट लाइन्स कि बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू। मैं एक सिंपल एक्सरसाइज करूँ बोलूंगी आपको। जस्ट आप ऐसे हाथ, सीधे हाथ कीजिए, जिसके वीडियो ऑन हो सकती करिए, सीधे हाथ रखिए और ऊपर करके पीछे में बेंड कीजिए। ओके, तो आपने पहली बार किया, ये बेंड किया, यस इट इज पॉसिबल। और थोड़ा पीछे कीजिए, दूसरी बार ज्यादा हुआ होगा बेंड। ओके, नाउ थर्ड टाइम, बेंड बेंड बेंड, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और बेंड कीजिए, और बेंड कीजिए। नाउ यू टेल मी, कोई एक ओपन करके वीडियो ऑडियो सिर्फ बताइए कि इसमें क्या हुआ, ये क्या प्रोसेस है। व्हाट आई वांट टू टेल यू, सिंपल। पहली बार खुद से किया आपने, दूसरी बार मैंने दूसरा चांस दिया, थोड़ा और पीछे गया होगा हाथ, तीसरी बार मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया कि नहीं आप कर सकते हो, करो करो करो, यस यू कैन डू इट। इससे क्या क्या कनेक्ट हो रहा है? कैन एनीवन प्लीज, otherwise I can take name because you all are learned and I think good in profession. So can you just Professor Geeta ma'am, can you just open your audio video or anything, can you share? Dr. Amit, yes, anyone? मैं यहाँ पे क्या क्या कहना चाह रही हूँ? यस, एनकरेज। थोड़ा और क्लियर बताइए। आप अपने बच्चे को बोले होंगे कि पढ़ो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, राइट? नहीं, अगर हम उससे बात करते हैं कि चलो आज क्या पढ़ रहे हो, ओह ओके फिजिक्स पढ़ रहे हो, पता है फिजिक्स मेरे दिमाग में जाती नहीं थी, चलो अपन दोनों मिलके फिजिक्स पढ़ते हैं, वहां पे बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। लाइक दैट यू विल अंडरस्टैंड, वो एक ट्रस्ट बिल्टअप होती है, बॉन्ड बिल्टअप होता है। जैसे आप अपने पेशेंट्स के साथ बॉन्ड बिल्टअप करते हो, आप अगर लेक्चरर हो तो स्टूडेंट्स के साथ बॉन्ड बिल्टअप करते हो, पहले वो रिलेशनशिप रहती है, कंफर्ट होता है, यस बेटा यू कैन डू इट, करो, आई एम देयर। किसी स्वामी ने बोला है यू नको मी तुझा पाठीशी आहे, डरो मत मैं तुम्हारे पीछे हूं। ये चीज अगर जब हम बोलते हैं बच्चे को, या हमें भी कोई बोलता है, तो हम मैक्सिमम एफर्ट्स लगा देते हैं। So that is the thing we can do, and that pattern will not repeat in our personality. Next slide. Yes. अब यहाँ पे आपने क्या सोचा था? बिजनेस करने की सोची थी या जॉब करने का सोचा था? ये बचपन से सोचा था, किसी ने सोचा था? बहुत लोगों को मैं इवन कुछ सीईओ जो बने हैं उनको भी मैंने पूछा, एचओडीज है जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनसे भी मैंने बात की थी कि सर आपने सोचा था कि आप आज एचओडी बने हो या जैसे जॉब में रहोगे, या आपने सोचा था कि जॉब में पहले से जॉब में जाऊंगा? नहीं, हम क्या सोचते हैं 10th के बाद देखा जाएगा, 11th 12th के बाद देखा जाएगा, देन ग्रेजुएशन के बाद देखा जाएगा। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट के साथ वी वर्क ऑन देयर आफ्टर 40 आफ्टर 30 तक, दैट इज सेट गोल। आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे या जॉब में जाओगे, इसमें दोनों में पर्सनालिटी पैटर्न होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर बिजनेस में जाना है तो आपको रिस्क टेकिंग कौन सी स्किल सेट चाहिए उसके ऊपर हमारे रिपोर्ट में निकलता है, आई जस्ट कम्युनिकेट विद देम। लेकिन उस बच्चे में अगर वो पर्सनालिटी नहीं है, वो पैटर्न नहीं दिख रहा है, वो इंक्लिनेशन नहीं दिख रहा है, देन वी टेल देम कि चलो जॉब में मस्त रहो, खुश रहो, और उसके बाद फिर सेकंड इनिंग का मतलब सोसाइटी के लिए क्या करना है, सोशल अगर क्वेश्चन उसका उतना अच्छा दिख रहा है तो व्हाट ही कैन डू आफ्टर रिटायरमेंट। तो इस तरह से क्लियर रहता है माइंडसेट। उससे क्या होता है कि बच्चा जब ग्रेजुएशन कर रहा है तभी से उसका रहता है कि किसी ने काम बताया और मुझे करना है, किसी ने बताया मुझे करना है, मुझे किसी की कंपनी के लिए काम करना है, तो ओनरशिप का पैटर्न बदल गया।
वहां पे मुझे अपने एफर्ट्स देने हैं, मुझे टीम वर्क में काम करना है, मुझे कंपनी के कस्टमर के लिए काम करना है। आई एम नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद द कस्टमर। तो आज ये कंपनी नहीं तो मुझे वो कंपनी अगर ज्यादा पैसा दे रही है, आई एम गोइंग देयर। तो वहां पे मेरी बिल्डिंग बॉन्डिंग वगैरह जो है वो टेम्पररी है, कंप्लीट टेम्पररी है। लेकिन बिजनेस में क्या होती है, बॉन्डिंग परमानेंट होती है। जो आपकी एक्शन रहेगी वही आपका सक्सेस है। तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है। तो आर यू एबल टू कैरी दैट लोड्स? और वो लोड्स कैरी करने लायक हमें बनाने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्क स्टाइल इंडिकेटर्स। आपने जो देखे, अगर उसमें अंदर वो पैटर्न दिखता है तभी ही शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अदरवाइज हम पहले से बता देते, बेटा प्लीज तुम कभी बिजनेस मत कर स्टार्ट करना, जॉब में खुश रहो। अदरवाइज अगर आप हमें पैटर्न दिखता है तो हम बताते हैं कि जॉब करते वक्त आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। इवन यू गो फॉर लेबर का भी वर्क कर लो, ब्लू कॉलर ड्यूटी करो, और वहां अंदर सिस्टम समझो कि वो किस तरह से लेबर काम करता है एक एक इंस्ट्रूमेंट पे प्रोडक्शन में, ताकि आप जब अपना सेटअप तैयार करोगे तो आपको उसकी बारीकियां पता रहेगी, पूरी कंप्लीट डिटेलिंग आपको पता रहेगी। तो दैट कॉन्फिडेंस विल प्ले द रोल टू गेट सक्सेस इन योर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर वो प्रोडक्ट का फैक्ट्री शुरू करते हैं तो लाइक दैट इंटरनल सिस्टम समझने के लिए यू नीड टू वर्क इन जॉब विद दैट माइंडसेट। तो वो माइंडसेट हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन इस एज में कैसे? तो आफ्टर 40 ऑल्सो इफ यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, देन वी वर्क विद दिस टेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल इन योर बिजनेस और इन योर जॉब। अब जॉब में क्या चाहिए? अप्रेजल चाहिए, मुझे गोल्ड कॉलर तक बनना है, तो यू नीड मैनेजमेंट स्किल्स। अब मैनेजमेंट स्किल्स कैसे अपग्रेड करनी है? इंटीग्रेटेड कोर्सेस यू नीड टू डू, यू नीड टू अपग्रेड योर बिजनेस सेटअप। तो इस पे भी हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ा रोल स्टडी ओवरसीज का भी आता है। मुझे एक बार बाहर जाना है, इंडिया के बाहर जाना है। क्यों जाना है? दो चीजें होती है। अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे बिजनेस ट्रिप ऐसे जाना है। बहुत लोग चाइना जाके आए और टाई अप करके आए। कैसे गए? विजिटर वीजा से। एक ग्रुप बनाया कम्युनिटी ने, और 10-15 लोग चाइना जाके प्रोडक्ट्स के जो ये थे प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, वहां एक्चुअल फैक्ट्री में जाके उन्होंने उसका प्रोडक्शन देखा एंड दे मेड टाई अप, और वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंडिया में आके सेल कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि उन्होंने वो सोचा। तो बिजनेस ट्रिप। अब यहीं पे ओवरसीज एजुकेशन भी आता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बहुत अच्छे मतलब नामी जो उनके बड़े बड़े बिजनेस सेटअप है, उनके बच्चे बड़े हो रहे। नाउ दे वांट देयर बिजनेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो उनका पहले से गोल आपकी में मास्टर्स आई विल डू देयर ओनली, नॉट ग्रेजुएशन। क्योंकि ग्रेजुएशन तक उनका जो भी एक मिट्टी से बड़ी सोसाइटी को समझना चाहिए। तो अप टू द एज ऑफ 23-24 they are connected with the mitti, and then for masters they go with the vision कि वहां की जो upgraded technology है that they will come, they will carry with them, and then they will just implement in their business, ताकि बिजनेस उनका एक लेवल और हाई हो जाए। लेकिन जॉब में अगर जाना है, वहां जाके सेटल होना है, तो ओवरसीज की एजुकेशन, ओवरसीज के एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाते हैं। सो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं कि मुझे परसेंटेज अच्छी लाना है, मुझे पहले से ही रहता है। अब ये परसेंटेज लाना एक वो एक्सपेक्टेशन, देन वहां जाके आपको वहां जाके अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती है। एक किस्सा में इन्फो, आई विल नॉट टेक एनी कंपनी नेम, बट एक ऐसा कंपनी का जो इंजीनियर था, वो कंपनी के काम से यूएस गया था, और वहां पे कोल्ड ड्रिंक उसको चाहिए थी ऑफिस में, एंड ही जस्ट पुट, किसने बताया कि वो पॉइंट डालो, यू विल गेट दैट कोल्ड ड्रिंक। वहां कोई सेल करने के लिए नहीं रहते, क्योंकि सर्विसेज वहां पे बहुत महंगी है, सर्वेंट वर्वेंट नहीं मिलते हैं। तो ही जस्ट पुट कॉइन, और नहीं निकला वो।
तो हम अपनी इंडियन मेंटेलिटी क्या होती है, 1 लात मारो निकल के आ जाएगा। उसने मारी 1 लात, वो हैबिट है ना हमारे, 1 लात मारी, वहां से पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई। फिर ऑफिस में वहां पे कंप्लेंट हो गई कि आपका जो एम्प्लॉय है उसने वो मशीन को लात मारी और वो चोरी करने की कोशिश कर रहा था। दे डोंट नो ना कि एक लात किसने क्यों मारी, तो हमें पता है कि लात क्यों मारी। अब यहाँ पे ये चीज बहुत आती है कि हाउ यू बिहेव इन अदर कंट्रीज। तो यहाँ से हम प्रिपरेशन जब करके वहां पे बच्चे को भेजते हैं, ही विल नॉट गेट दैट स्ट्रेस, क्योंकि उसको स्टडीज करना है, पार्ट टाइम जॉब करके अपना लिविंग निकालना है। अपना लिविंग निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ट्यूशन फीस पेरेंट्स दे पाते हैं, वहां पे रिलेशनशिप बनानी पड़ती है सो दैट ही विल गेट जॉब। ये सब तैयारी करके जब वो जाता है, साथ में एंट्रेंस एग्जाम, फिर वहां का स्टडी प्रेशर, यहाँ का पैटर्न अलग, वहां का पैटर्न अलग, स्टडीज का, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कभी कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इससे बात करूं, सो बहुत सारे प्रेशर के साथ वो जाता है। तो वो स्ट्रेस, वो इज ही एबल टू कैरी दैट। तो वो प्रिपरेशन अगर हम पहले से कर लेते हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकता है, होम सिकनेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे फिर से एक कंफ्यूजन कि मैं जाऊं कि नहीं, इतने प्रॉब्लम्स आएंगे, अरे मैम ने ऐसे बता दिया तो मेरे बच्चों को भेजना चाहिए कि नहीं, पेरेंट्स की वरीज होती है। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को, देख तेरे को मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वहां जाके खाना पीना खुद ही कर लेना, पार्ट टाइम जॉब कर लेना। इंडिया में है तो इंडिया में भी बोल देते हैं कि बाबा तू पढ़ाई कर, बहुत मार्क्स लेके आ, क्योंकि उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे वही कॉलेज चाहिए। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और उस कारण क्या होता है कि वो नहीं लाए तो नहीं लाए तो, वो जो एक थॉट होता है ना, वो उसको बहुत परेशान करता है। अगर मुझे नहीं मिला तो यहाँ पे कंफ्यूजन उसका, फिर उस कंफ्यूजन के भौरे में वो फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, एंड ही इज नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो। क्योंकि हमने तो बना दिया ना, अपने पेरेंट्स बहुत केयरिंग पेरेंट्स है, बहुत पैसा डाल दिया है, अब सब जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, बेचारा वो प्रेशर में कहाँ से बात करेगा। यहाँ पे उसके लाइफ स्किल्स वीक हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, उसको सोसाइटी नहीं मालूम, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना नहीं मालूम, बिकॉज वो पढ़ाई कर रहा है। हाँ, कब से पढ़ाई कर रहा है, 8th से वो रूम बंद करके पढ़ाई कर रहा है, ना शादी में जाता है ना कहीं भी जाता है, तो उसका सोशल बिहेवियर जो होता है वो वीक होते जाता है। उसको नहीं पता इंटरेक्ट कैसे करना है, रिलेटिव्स के साथ कैसे बात करना है। वहां पे उसका जो पावर होता है वो कहाँ होता है, रूम के अंदर होता है, रूम के बाहर पावर नहीं हो पाता है। क्योंकि बचपन तक 7th तक तो मेरा बेटा बहुत अच्छा खेलता था, कूदता था, लेकिन 8th के बाद पता नहीं उसको क्या हो गया, क्यों वो कॉन्शियस हो गया, उसकी अचानक हाइट बढ़ गई, शोल्डर्स बेंड हो रहे होंगे, कुछ ऐसी कुछ आदतें लग गई होगी। ये ऐसी नहीं है, वो इनसिक्योरिटी की वजह से आदतें होती है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ते जाती है, बिकॉज उसका सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो ये उसका हैंडल करना बहुत जरूरी है। सो यू कैन टेल देम कि आप जाओ, थोड़ा एनजीओ में जाओ, थोड़ा ग्रुप में पिकनिक जाओ, अकेले रह के देखो, लाइक दैट। अब यहाँ पे पिकनिक जाते हैं तो किस तरह की बातें होती है, अगर उनकी स्टडीज उनके लिए इंटरेस्टिंग है तो दे विल बी क्यूरियस, एंड क्यूरियसिटी विल गिव देम, दैट इज IQ, क्यूरियसिटी एंड गेनिंग नॉलेज। क्यूरियसिटी के साथ अगर वो हर चीज देखते हैं तो उनका नॉलेज अपने आप अपग्रेड होता है, स्पेशल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कल्चरल अंडरस्टैंड करते हैं, कल्चर, अभी जैसे कोलकाता, तो कोलकाता आते ही मुझे वो देवी, दुर्गा देवी, एक बार मैं वहां थी तो दुर्गा देवी के वो माहौल में कैसे एकदम पूरा सिटी सजता था, आई हैव सीन, रियली वो बहुत अलग होता है माहौल, वहां पे हर कोई एक साथ सेलिब्रेशन करता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है उनको, टीम बिल्डिंग सीखने मिलती है, बहुत सारे। एंड यहाँ पे क्या होता है, उनका वहां पे इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, तो रात भर भी वहां पे वो चले, वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तभी उनको थकान नहीं होती। दैट इज EQ, इमोशन, हार्ट। जहां पे हमारा अटैच होता है वहां पे हमारा पैशन जुड़ जाता है, तो हमें कोई भी मेहनत करने में आसानी लगती है। राइट, यस, नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे करियर्स, इंजीनियरिंग करियर्स के लिए, इमर्जिंग करियर्स के लिए क्या चीजें जरूरी होती है। AI तो सब तरफ आ गया है, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग। एक डॉक्टर से अभी मेरी बात हो रही थी,
हमारे ग्रुप में 2-3 डॉक्टर्स है, तो दे वर जस्ट टॉकिंग विद अस कि हम डॉक्टर जब बन रहे थे तो हमें लगा कि डॉक्टर बन गए, बल्ले बल्ले बस प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और सब लाइफ सेट है। लेकिन जब डॉक्टर बन गए, देन बात आई इन्वेस्टमेंट की। अपना केबिन, मुझे फिर सेटअप चाहिए, फिर मशीन चाहिए, मुझे जगह चाहिए। बाप रे, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, लोन शुरू हो गए। देन अब पेशेंट्स आने चाहिए उतने, टारगेट। तो यहाँ पे उनको समझ में आया कि सिर्फ डॉक्टर बनने से बात नहीं होती है, तो उनको अपने बिजनेस डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। एंड नाउ दे स्टार्टेड ऑन दैट। अगर ये चीज उनको पहले से पता होती तो वो पर्सनालिटी अपने आप तैयार हो जाती है। 40 के बाद, 30 के बाद दैट पर्सनालिटी वी कैन नॉट बिल्ट अप। वो नजरिया, वो माइंडसेट हम बिल्टअप नहीं कर सकते। और उनको इतनी तकलीफ हो रही है अभी वो समझने में, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह पे है। हमें सब कुछ चाहिए, हमें यूरोप टूर जाना है, हमें बाहर जाना है, बहुत बड़े बड़े घर चाहिए, बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेजना है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है लाइफ से। और वो एक्सपेक्टेशन और वो पूरे करने के लिए जितना मनी चाहिए, ये हमने सोचा ही नहीं था। हम क्या सोचते हैं, आज भी बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा तू चिंता मत कर पैसे की, पैसे कमाने के पीछे मत पड़, तू पढ़ाई कर, तू बस पहले एजुकेशन, अपना करियर सेट कर। नो, आपका करियर जिसमें आपको करना है, पैशन और आपका IQ, मतलब जो जहां पे आपको ब्रेड एंड बटर, वो, और आपका इनकम कितना होना चाहिए, किस एज में, ये प्लान आज से होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। तभी बच्चा समझता है कि मुझे जो भी काम करना है पैसे मांगने उसके, नहीं तो वो पैसे मांगना नहीं सीखता है, वो सिर्फ पेरेंट्स से ही मांगता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो आर्किटेक्ट्स हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, इनको बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। सो जहाँ पे हम ये करियर क्लैरिटी टेस्ट के माध्यम से वी कैन फाइंड आउट इन यू, अगर आप रिसर्च डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्निकल नॉलेज में अच्छे हैं, तो वी कैन सजेस्ट सम इंटीग्रेटेड कोर्सेज सो दैट यू कैन कंपाइल इट, मिक्स कर सकते हैं। CA है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग जॉब करने के बाद दे आर नाउ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उन्होंने शुरू किया, तो कुछ एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ती है। एट द एज ऑफ 40 दे कैन, आई हैव डन मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स इन ड्रामेटिक्स एट द एज ऑफ 40 विथ रेगुलर कॉलेज 2 years। एंड वहां पे मैंने रिसर्च किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विथ परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंड दैट इज अप्लाइड थिएटर, म्यूजिक। अब म्यूजिक थिएटर, म्यूजिक थेरेपी आ गई है, तो बहुत सारे थेरेपीज भी आ गई है। तो प्रोफेशन के साथ साथ अगर आपका पैशन है तो दैट यू कैन जॉइन इट। तो किसी भी एज में यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर करियर। आज भी आप मेरे सामने बैठेंगे तो फॉर श्योर आई विल गिव यू न्यू पैरामीटर्स इन योर लाइफ। सो वर्क ऑन दैट, बी ओपन फॉर दैट, सरेंडर। So this is my suggestion, because I am right now also doing these things. I am attending many trainings. Yeah, next please. तो यहाँ पे अगर आपको क्लैरिटी और चाहिए तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ इवाल। एंड यहाँ पे एक आप कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा टाइम दीजिए अपने लिए, खुद के लिए, एंड वर्कआउट ऑन योर पैरामीटर्स, पर्सनालिटी, आपकी वर्क स्टाइल कैसी है, आउटडोर है कि नहीं है। अगर आउटडोर नहीं है तो यू नीड टू अपग्रेड, एक 50% तक तो लाना चाहिए, भले 100% ना हो। देन क्लाइंट फेसिंग में 1-to-1 पे आज भी मैं काम करती हूँ। मेरा जो बिजनेस है मैं 30 सेकंड में कैसे बता पाऊंगी, तो इस पे आज भी काम करती हूँ, डेली काम करती हूँ, तब जाके आई एम एबल टू स्पीक विद इन 30 सेकंड्स। लोगों के पास टाइम नहीं है स्टोरी सुनने के लिए, ब्ला सुनने के लिए। So within short period, how you can digital marketing, social media presence, how you can present your testimonial, your presence in social media, वो भी एक business हो चुका है। You need to accept it. तो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी सीख के we can represent ourselves. Shalini, I think time is over. Yes. So बोलते रहूंगी तो काफी चीजें हैं बोलने के लिए, but you can connect with Shalini and we for sure with that test। हाँ, tools एक just short में बताती हूँ। I have done lots of training programs with DMIT and अलग-अलग tools, aptitude test and all these things। मेरा आज 24 years का experience है। लेकिन जब मैंने इवाल और शालिनी जुड़ी, I am really convinced with that, because
लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट वर्क्स ऑन योर साइकोलॉजी, प्रेजेंट माइंड, और प्रेजेंट माइंड पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बेटर वर्क ऑन प्रेजेंट माइंड, अंडरस्टैंड योर ब्लॉकेजेस, ब्लैक स्पॉट्स, एंड जस्ट take advice from mentor. Keep one mentor so that you will get success, and basically success with happiness, not monetary. Monetary will be byproduct. So thank you so much for this opportunity. I think you will like it. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. It's really admirable insights. And we have come to the end of our webinar. We would like to thank everyone who made this webinar possible. Thank you all participants, and thank you Pragyan team once again. Now, Mrs. Manjusa Bhaskurwar and Ms. Shalini Menon, we want to felicitate you with the certificate of appreciation. I'm just going to share my screen to show the certificates of appreciation. This is the certificate of appreciation for Manjusa ma'am. Can you send it in what? Yes, mail of in course. to Yes, Shalini. Yeah, thank you Of so course, much. Thank you ma'am. so much. I will send it definitely. And this is the certificate of appreciation for Shalini ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, this is the certificate. And thank you again. I'm sending these certificates in your mail ID. Now, all the participants, please turn on your videos so we could take group photos. Please turn on. Please, everyone, turn on your videos. I'm just taking group photos. Please. Now, please check the chat box for the link of feedback form that I have already shared. And fill the feedback form and get your e-certificates in your mail ID. You will get this participation certificate, which you can see on my screen. I'm also sharing my screen. This will be the certificate of participations, and I will send in your mail ID. And please fill the feedback form. But remember to fill the feedback form and please mention your mail ID and valid mail ID. Without filling the feedback form, we are not able to send you certificates. And thank you, everyone. We appreciate you being here. We hope to see you soon in our next webinar. We will share the registration form in the WhatsApp group. And for today, bye-bye and have a nice day. Bye-bye, ma'am.